السلام علیکم میرے ساتھیوں، وفا انٹول اسٹوری پر خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو۔ آج سنتے ہیں ایک ایسی سچی کہانی جس میں لڑکا اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور کیا وہ جس لڑکی کے لیے ایسا کرتا ہے وہ اس کو ملتی ہے، یا یہ اس لڑکی کا دھوکا تھا۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل وفا انٹول اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیے۔ میں جس گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں میں دو قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے لوگوں کے دشمن تھے۔ معمولی سی بات پر اس قدر جھگڑا ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر اتر آتے۔ جس قبیلے میں ہم رہتے تھے وہاں کے سربراہ میرے ماموں تھے۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے چھوٹی جو کہ میرے ماموزاد کی منگیتر تھی، اور میں بھی ماموزاد کا منگیتر، کیونکہ ہمارے گاؤں میں بٹے سٹے کا رواج عام تھا، یعنی ادر بدل کی شادی۔ میری ماں بھی ماموں سے بہت محبت کرتی تھی اور ماموں ہمارے گھر کے فیصلے خود کرتے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگی سے مطمئن تھے۔ ماموں جان بڑی محبت سے مجھے اپنے کاروباری اور ذاتی معاملات میں شریک کرتے تھے۔ گاؤں میں زیادہ تر زمینیں ہماری اور ماموں کی تھی، اس لیے میں دونوں طرف یعنی اپنے ماموں اور اپنے گھر کے کاموں کی نگرانی کرتا تھا۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میں معمول کے مطابق کھیتوں پر کام کر رہا تھا۔ سامنے کنویں سے کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی۔ پانی بھرتے بھرتے اچانک سے دو عورتیں ایک عورت سے لڑنے لگی۔ ایک لڑکی جو کہ اپنی ملازمہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی، عورتوں کو اپنی ملازمہ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ اس قدر بھڑکی کہ سب خاموش ہو گئے، لیکن ایک عورت مسلسل بحث کرتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام سیما تھا۔ مجھے ان کی بحث دیکھ کر اچھا نہیں لگا اور سوچا کہ ان کی مدد کروں، لیکن جاتے جاتے پھر رک گیا کہ یہ دوسرے قبیلے کی لڑکی ہے اور قبیلے کے سردار یاسر کی بیٹی ہے، لہٰذا نہ ہی میں جاؤں تو بہتر ہے۔ دوپہر کے وقت وہاں کوئی اور آدمی بھی نہیں تھا جو انہیں لڑنے سے روکتا۔ سب کچھ بھول کے میں آگے بڑھا اور عورت سیما کے ساتھ جھگڑا جو کر رہی تھی اسے چپ کروا کر سیما کے ملازمہ کو پانی بھرنے دیا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ پانی لینے کے بعد سیما اپنی ملازمہ کے ساتھ اپنے راستے پر چل پڑی۔ میں بھی کچھ دور ان کے ساتھ گیا۔ مجھے اپنے ساتھ چلتا ہوا دیکھ کر وہ بولی، آپ کو میری مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ تو آپ ہمارے ہمدرد تھے اور نہ ہی ہمارے قبیلے سے، پھر ایسا کیوں کیا؟ میں اس کی معصومیت کو دیکھ کر حیرت زدہ تھا کہ یہ یاسر کی بیٹی ہے، لیکن کس قدر تمیزدار اور مہذب۔ میں آرام سے بولا، یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہی اچھے اور ہمدرد ہوں جو آپ کے قبیلے سے ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ عورت آپ کے قبیلے کی ہونے کے باوجود آپ کی ملازمہ سے کس قدر بدتمیزی کر رہی تھی۔ اور ہاں، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ غیر قبیلے کے لوگ اتنے برے ہوں کہ انسان کو پریشان دیکھ کر وہ اس کی مدد نہ کریں۔ یہ تو سب کی سوچ ہی منفی ہے، بہت غلط ہے۔ میں ایسی سوچ نہیں رکھتا ہوں۔ میری باتوں کو وہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ پھر وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی، کاشف نام ہے نا آپ کا؟ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ میرا نام کیسے جانتی ہے۔ میں نے پوچھا تو بولی، ابا جان اکثر آپ کی باتیں کرتے ہیں کہ غلام حیدر کے بھانجے کاشف نے اپنے ماموں کو سہارا دیا ہے، ورنہ وہ انسان اس قابل کہاں کہ اتنی ترقی کرے۔ ظاہر ہے آپ اپنے ماموں کے رازدار ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے اپنی ملازمہ کے ساتھ چلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں اپنے ماموں جان کے لیے کس قدر اہم ہوں۔ پھر وہ بولی، کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہو سکتا ہے۔ میں ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کے سے انداز میں کہنے لگا، اچھا جی، میرا نام جان کر کیا کریں گے؟ وہ شوخی سے بولی، وہی کروں گا جو آپ نے میرا نام جانتے ہوئے کیا۔ میں بھی کچھ شوق سا ہو چلا تھا۔ اوہو، تو کیا کیا میں نے؟ دیکھو کاشف، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہاں 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 ہاں، تو میں بھی یہی کروں گا، میں نے اسی کے انداز میں کہا۔ پھر وہ ایک زوردار ہنسی کے ساتھ کہنے لگی، سیما نام ہے میرا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے الگ راستے پر چل پڑی اور میں وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں بھی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ نہ جانے اس کی ملاقات میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ رک رک کر اس کی ہر بات مجھے یاد آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ ہر روز کنویں پر اپنی ملازمہ کے ساتھ آنے لگی۔ اگلے دن اسی وقت میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا۔ عورتیں آ رہی تھی اور اپنی اپنی باری سے پانی بھر کر لے جا رہی تھی، لیکن سیما اور اس کی ملازمہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں۔ میں اٹھ کر کھیتوں کی طرف جانے لگا۔ اچانک کھیتوں سے نکل کر آتی ہوئی سیما مجھ سے ٹکرا گئی۔ اف، دھیان سے چلیں، کیا آپ کی گاڑی چھوٹ رہی ہے؟ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تیزی سے کہا۔ نہیں، دراصل مجھے کھیتوں میں کام ہے، اس لیے۔ میں شرمندہ ہو کر بولا، اچھا جی، چلے مان لیتی ہوں، ویسے سامنے والے کھیت آپ کے ہیں نا؟ جی ہاں،
मैंने फुर्ती से कहा। वाह, तभी इतने हरे भरे नजर आ रहे हैं। वैसे काशिफ, क्या आप मुझे अपने खेत दूर दूर से ही दिखाएंगे? चले, मैं भी आपके साथ खेतों पर चलती हूँ। जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं तो बिल्कुल नहीं। बात यह है कि आपको अगर किसी ने मेरे साथ देख लिया तो, मैंने डरते हुए कहा। तो क्या? उसने संजीदगी से कहा। चलें, कुछ भी नहीं होगा। जब मैं नहीं डर रही तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? आपसे वो अचानक तुम पर आ गई। उसका बेतकल्लुफाना अंदाज और बदला हुआ रवैया मेरे लिए हैरत का बाइस था। फिर वो मेरे साथ खेतों पर आ गई और फसलों को देखकर तारीफ कर रही थी। तकरीबन आधा घंटा हम ऐसे ही खेतों पर बातें करते रहे। फिर अचानक याद आया उसको कि उसकी मुलाजमा ने पानी भर लिया होगा। ये कहते ही वो जल्दी से कुएं की तरफ चल पड़ी। सीमा का मेरे साथ यूं बेतकल्लुफ होना खतरे की बात थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को उसकी तरफ माइल होने से रोक नहीं सका। सीमा के जाने के बाद फिर से पूरा दिन और रात उसको सोचते हुए गुजरा। अगली सुबह होते ही मुझे उसके आने का इंतजार होने लगा और काम में भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। दोपहर के वक्त कुएं पर औरतों की कतारें नजर आने लगी। उन औरतों में मेरी नजरें सीमा को तलाश कर रही थी, जो कि शायद अभी तक नहीं आई थी। काफी इंतजार करने के बाद मुझे लगा जैसे आज वो नहीं आए। मैं उठकर चल पड़ा और खेतों में काम करने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सीमा मेरे सामने खड़ी है। मैं उसे देखकर परेशान हो गया। सीमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, क्या मेरा यहाँ आना मना है? उसने हैरत से कहा। मना तो नहीं, लेकिन क्या आप जानती नहीं कि हम दोनों अलग अलग कबीले से हैं? आपके लोग हमें और हमारे लोग आपके लोगों को अच्छा नहीं समझते, मैंने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बात यह है कि मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसने मेरी बात काट दी। अच्छा अच्छा, छोड़ो इन बातों को और ये बताओ कि तुम आज कुएं पर क्यों नहीं आए? मुझे कुछ काम था, मैंने टालने के से अंदाज में कहा। क्या काम था? उसने न टलने वाले अंदाज में कहा। दरअसल कुछ खादें और स्प्रे शहर से मंगवाने थे, वही लिख रहा था। ओहो, तो जनाब मसरूफ हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये बताओ, आप पूरा दिन घर में क्या करती हो? मैं घर में कुछ खास काम नहीं करती। काम करने के लिए मुलाजमा वगैरह है। ये मुलाजमा जो पानी लेने आती है मेरी एतमाद वाली है, इसलिए मैं भी इसके साथ आ जाती हूँ। कुछ बातें करने के बाद सीमा चली गई। उसके बाद हर दिन हमारी ऐसी ही मुलाकातें होने लगी। कभी मैं कुएं पर चले जाता और कभी वो खेतों में आ जाती। फिर कुछ यूं हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। साथ निभाने के लिए कस्में और वादे किए गए। दिन यूं ही गुजरने लगे और मैं बदलने लगा। मेरी तब्दीली मेरी माँ से ज्यादा देर छुपी ना रही, लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी कोई बात समझ में आई ही नहीं थी। एक दिन मैं और सीमा मामूल के मुताबिक बैठे बातें कर रहे थे कि मेरे मामू को किसी ने खबर कर दी और वो ऐन मौके पर पहुंच गए और हमें देख लिया। सीमा तो फौरन वहां से चली गई और मामू मुझे अपने साथ घसीटते हुए घर ले गए। घर पहुंचकर मम्मी से बोले, जानती हो तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला रहा है? मामू के गुस्से को देखकर अम्मी डर गई और बोली, खुदा खैर करे भाईजान, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और ये क्या कह रहे हैं? पूछो इसी से। ये यासिर की बेटी के साथ क्या कर रहा था? उससे हर रोज क्यों मिलता है? अम्मी आंखें फाड़े हुए मुझे घूर कर देख रही थी। फिर बोली, बोलो काशिफ, क्या बात है? तुम्हारे मामू क्या कह रहे हैं? तुम यासिर की बेटी के साथ? उन्होंने कहा। तो मैंने बड़े सुकून से अम्मी को बता दिया, अम्मी जान, सीमा एक अच्छी लड़की है। क्या अच्छी लड़की? तो इसका मतलब तुम उससे मिलने लगोगे? बोलो, क्यों मिलते हो उससे? अम्मी सख्त गुस्से में बोली थी। साथ ही मामू की आवाज इस कदर शदीद थी कि दरो दीवार हिलते हुए महसूस होने लगे। मामू जान, वो क्या? काशिफ, क्या मतलब है? उनकी हालत गुस्से से गैर हो रही थी। मामू जान, वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनना था कि अम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और मामू जान तो एकदम खामोश ही हो गए। शायद उन्हें अपनी बेटी और मेरी माँ की फिक्र होने लगी थी। सुरैया, अपने बेटे को समझा लो, मामू ने मेरी अम्मी को मुखातिब करते हुए कहा। अगर ये समझ जाए और अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो ठीक। हम अगले 10 दिन में ही अपने बच्चों की शादी कर लेंगे। मामू का मतलब मेरी शादी अपनी बेटी और मेरी बहन की शादी अपने बेटे से करने का था। वरना तुम लोग इस गांव से निकलने की तैयारी कर लेना और मैं तुम सब के लिए मर गया और तुम सब मेरे लिए। और हाँ, इसे समझा दो, यासिर की बेटी इसे सिर्फ और सिर्फ फरेब, धोखा दे रही है। मैं यासिर की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर ये समझ जाए तो बहुत अच्छा, वरना फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। ये कहकर मामू घर से चले गए। मामू के जाने के बाद अम्मी जान ने हर मुमकिन कोशिश की
کہ مجھے समझा सके, लेकिन मेरे सर पर सीमा की मोहब्बत का भूत सवार था और मैं उसके खिलाफ एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था और रह रहकर सीमा का ख्याल आ रहा था अगर उसके घर वालों को भी इस बात की खबर हो गई तो न जाने वो सीमा के साथ कैसा सलूक करेंगे। अम्मी ने साथ साथ ये फैसला भी सादिर कर दिया कि जब तक मेरी शादी मेरे मामूजाद खदीजा से नहीं हो जाती मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, और साफ अल्फाज में कह दिया। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बदतमीजी शुरू कर दी कि तुम लोग कौन होते हो? मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। मैं जिससे चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ जिंदगी गुजारूं, जिससे चाहूँ शादी करूं या नहीं करूं। इसी दौरान अब्बू भी आ गए। अम्मी ने अब्बू को तमाम बात बताई जिससे अब्बू भी परेशान नजर आने लगे। सबने मुझे डांट कर और प्यार से गर्ज हर तरह से समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद से, अपनी हठधर्मी से नहीं हटा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस कदर पाबंदियों के बाद अब सीमा से कैसे मिला जाए। 2 दिन के बाद मैं खेतों पर गया। वहां मामूजान पहले से मौजूद थे, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं खेतों पर आऊंगा तो हो सकता है फिर से सीमा से मिलने की कोशिश करूं। मैं एक तरफ बैठा कुएं की तरफ देखता और सीमा का इंतजार करता रहा। उस दिन सीमा नहीं आई। मैंने एक खत लिखा और छुपकर वो खत सीमा की मुलाजमा को दे दिया, जो वहां पर पानी भरने आई हुई थी। मैं जानता था कि यह सीमा की भरोसेमंद मुलाजमा है। खत में रात को मिलने का जिक्र था। मुलाजमा ने कहा और ये कि वो ये खत सीमा को जरूर देगी। रात के वक्त मैं घर पर ही था। जब सारे लोग सो गए तो मैं खत पर लिखी मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया जहां मैंने सीमा को बुलाया था। सीमा वहां खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पूछने पर सीमा ने बताया उसके घर वालों को भी सब कुछ पता चल चुका है और उन्होंने सीमा के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रंजीदा देखकर सीमा ने कहा, सब्र से काम लो और जल्द ही मैं अपने घर वालों को मना लूंगी। सीमा ने मुझे शादी न करने को कहा, जबकि पूरे गाँव में मेरी शादी का चर्चा हो रहा था और मैं अपनी मामूजात से शादी कर रहा हूँ। सीमा को भी ये सब कुछ मालूम था। मैंने उससे पूछा मैं क्या करूं जो मेरी शादी मामूजात से ना हो, क्योंकि अम्मी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। सीमा ने मुझसे कहा, शादी के दिन तुम घर से चले जाना और 3 दिन के बाद गांव लौटना। तब तक मेरे घर में भी सबको यकीन हो जाएगा कि तुमने मेरी वजह से शादी नहीं की और वो मान जाएंगे, और ये भी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, फिर हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा, अगर वो तब भी नहीं माने तो? सीमा बोली, तब हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगी। सीमा से बात करके मुझे हर तरफ से उम्मीद की किरण नजर आने लगी। मैं उसी के कहने पर गांव में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा ताकि किसी को शक ना हो सके। शादी के दिन भी मैं घर में ही था। सब लोग खुश नजर आ रहे थे। मुझे सीमा का मशवरा याद था और ठीक भी लग रहा था। चुनाचा मैं आंख बचाकर घर से निकल गया। उस वक्त मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, न मामू की इज्जत, न अब्बू जान और अम्मी की खुशी। सिर्फ सीमा के बारे में सोच रहा था कि मैं उसके साथ धोखा ना करूं। ऐसे में मैं गांव से निकलकर अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। मैंने जब उसे पूरी सच्चाई बताई तो उसने मुझे कहा कि मैं वापस लौट जाऊं और घर वालों को, माँ बाप को, मामू को परेशान ना करूं। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। आखिर उसने मुझसे कह दिया कि वो ऐसे गलत काम में मेरा साथ नहीं देगा, लिहाजा मैं वहां से चला जाऊं। फिर मैं एक होटल में चला गया। वहां मैंने 3 दिन गुजारे। उन दिनों में मेरे घर वालों पर क्या कयामत गुजरी ये तो वही जानते हैं। 3 दिन बाद जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी और अब्बू ने मुझे घर में रखने से इनकार कर दिया और मेरे साथ तमाम रिश्ते नाते भी खत्म कर दिए। मामू ने अपने बच्चों की शादी मेरी खालाजाद के साथ कर दी, जो साथ वाले गांव में रहती थी। मेरी बहन का रिश्ता भी खत्म हो गया मेरी वजह से। मामू ने हम सब से कतई ताल्लुक कर लिया, रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन अम्मी ने कहा कि वो इस गाँव को छोड़कर नहीं जाएंगी, वो उनके साथ रहेंगी। वो अपने बेटे को छोड़ सकती हैं लेकिन अपने भाई को नहीं। तो मामू मान गए। माँ बाप को छोड़कर मैं घर से चला गया और कुएं के पास जाकर बैठ गया कि शायद सीमा अपनी मुलाजमा के साथ आ जाए। उस वक्त मेरा कोई नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि सीमा ने सबको राजी कर लिया होगा, इसलिए फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सीमा अपनी मुलाजमा के साथ मुस्कुराती हुई आई। मैंने सीमा को मिलने का इशारा किया, लेकिन उसने गौर नहीं किया। कुछ देर बाद मैंने फिर से सीमा को बुलाया कि वो मुझे मिले, क्योंकि मैं सबके सामने उससे बात करता तो हो सकता था गांव में फिर से कोई उसके घर वालों को बता देता। सीमा, मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने कहा था। क्या तुमने अपने अब्बा को मना लिया है? उफ, सॉरी काशिफ, मैं नाकाम रही। अब्बा नहीं माने और प्लीज तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मेरा रिश्ता तय हो चुका है और जल्द ही मेरी शादी भी है। उसने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या तुम ये क्या कह रही हो?
तुम पागल तो नहीं हो गई? काशिफ देखो, जो किस्मत में नहीं वो नहीं हो सकता, और मुझे अपने घर वालों की इज्जत बहुत अजीज है। मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं जो अपनी खुशी के लिए अपने घर वालों को तन्हा छोड़ दूं। उसने मुझ पर चोट की थी। सीमा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, माफी मांग कौन रहा है? और हाँ, मैं अब जा रही हूँ, आइंदा मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो इंतहाई जल्दबाजी में तेजी से कदम पटकते हुए चली गई और मेरे जहन पर सवालों की बौछार गिर गई। उफ खुदा, उस लड़की ने तो वाकई मेरे साथ धोखा किया है। मामू जान ने सच ही तो कहा था, काश मैं उनकी बात मान लेता। अब मैं कहाँ जाऊं? ये बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। ये कहानी सुनाते सुनाते काशिफ रोने लगा। वो कहानी मुझे सुना रहा था। मैं उसको एक हमदर्द के तौर पर सड़क के पास ही मिला था, जहां पर वो बेहोश पड़ा था। काशिफ के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसने काशिफ को, यानी सीमा ने काशिफ को अपने घर और मामू से अलग करके ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, जो बहुत बड़ी रुसवाई थी। जिल्लत के हाथों मुंह छुपाकर उसने गांव छोड़ा और शहर आ गया। जब उसे शहर आकर कुछ अरसा गुजर गया तो उसने अपने घर वालों को याद किया और याद करते करते रोता रहता। उसका कोई जानने वाला भी नहीं था। वो सड़क पर ही रहने लगा, उस लड़की के धोखे और घर वालों से जुदाई के गम में इस कदर रोता कि उसकी हालत गैर हो जाती। शुरू में उसने नींद के लिए दवाई लेना शुरू कर दी, जिससे किसी हद तक पुरसुकून रहता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खतरनाक हद तक नशे की मिकदार बढ़ा दी और आज ये इस हालत में है। ये सब कुछ सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। उस नौजवान लड़के ने उस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी खराब करने के साथ साथ घर वालों को भी बुरी तरह बदनामी का दाग लगा दिया था, रुस्वा किया था। ऐसी रुस्वाई जो शायद पूरी जिंदगी भी खत्म ना हो। हॉस्पिटल आ चुका था। मैंने जल्दी से काशिफ को इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भेज दिया। काशिफ का इलाज शुरू हो चुका था। कुछ महीने इलाज के बाद काशिफ सेहतयाब हो गया और फिर मेरा काम उसे दिमागी तौर पर पुरसुकून करना था, इसलिए मैंने उसे नफ्सियाती डॉक्टर के पास भेजा। कुछ खास इलाज के बाद काशिफ मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके साथ हुआ उसे उसका गम था। लेकिन वो समझ चुका था कि खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए कभी गमजदा होकर जिंदगी जैसी नेमत को ज़ाया नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है और इस अमानत की हिफाजत हर इंसान का फ़र्ज है। उसके बाद मैंने काशिफ को अपने शहर में ही एक नौकरी पर लगा दिया, जहाँ दिन रात मेहनत करके जल्द ही वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। कुछ अरसे बाद उसकी शादी एक अच्छी लड़की से करवा दी और अब वो खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन अपने माँ बाप के छूट जाने का गम अभी भी उसके दिल में है। वो आज भी इसी उम्मीद पर खामोश रहता है कि शायद एक दिन उसके माँ बाप उसे फिर से अपना लें। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। काशिफ की इतनी बड़ी गलती उसे हमेशा याद रहेगी, चाहे वो जिंदगी में जितनी भी खुशियां हासिल कर ले। लेकिन ऐसी गलतियां इंसान को मुतमईन नहीं होने देती।